नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है द Gardenia Mic Talks, Talents and Truths. Today's episode is not just a podcast, it's a celebration of strength, courage and the spirit of true Indian hero. जहां हम बात करेंगे हिम्मत, हौसलों और नारी शक्ति की। अक्सर कहा जाता है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और आज हमारे बीच ऐसी ही नारी मौजूद है जिनके कर्मों ने देश को गर्व महसूस कराया है। सो प्लीज वेलकम लेफ्टिनेंट कर्नल आरती मिश्रा जी टू दिस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट द Gardenia Mic Talks, Talents and Truths. वेलकम मैम एंड जय हिंद। Thank you so much. Jai. Thank you. वेलकम मैम वंस अगेन। Thank you so much. मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। Okay, so मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल आरती मिश्रा है. I put in around 17.5 years of service to this nation, and I'm deployed somewhere near border of JNU. वेरी नाइस। मैम, मेरा भी आप ही की तरह सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका एक सिविलियन से लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल तक का जो आपका सफ़र है, जो आपकी जर्नी है, तो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में हमको कुछ बताएं। तो आई थिंक मैं आप ही के एज की थी जब मेरे स्कूल में एक बार एक मेजर सब मेडिकल ऑफिसर है कम, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था एंड शी वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल. I never seen a more beautiful and strong woman before. So I decided that I want to be like her. I wanted to look like her. I wanted to talk like her, dress like her, and everything like her. So that was the start point. Thereafter I studied and मुझे पता चला कि महिलाओं के लिए NDA की entry नहीं है. There is only one entry through which we can get into army at that time, and that was OTHN. For that we had to do graduation. So I did my graduation thinking that I have to get into the army. Finally I got the chance, sat for the exams and made it to the army. For the very first time you made it. I was one of the lucky ones. That's very good. मैम, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटिंग है। लाइक आई एम ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय दैट ओनली। आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हेन डिड यू फर्स्ट फील दैट यस आई वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी? उस टाइम आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट किया था? Okay, so I think इसका जो बेस था that was when I was in school. I was into sports and there is something called scouting and guiding. I was part of that organization. My father was also in the same organization. He was a leader trainer. तो उसमें there are camps in which we go. So when I was in class 4th, I went for my first camp. There I realized the importance of discipline, and there was a uniform. So I used to feel so proud when I used to wear that uniform. I was different from other kids because I was wearing a uniform. I used to take a lot of pride in that. उसके बाद every year हम किसी न किसी कैंप के लिए जाते थे. Then I got into sports. तो हम sports के लिए जाने लगे. I understood कि fit रहना बहुत ज़रूरी है. And I realized that I like being fit. I like sports. I like discipline. I like the uniform. So then I started thinking कि ऐसी क्या job होगी which is a job which can get me some money, of course, but at the same time I can live my dream. So I thought of army, and my father is a big army fan, so he always supported my decision to get into army. So that is how. Oh, so special. At that time you were the special student at the school, right? Okay, I was, yeah. You can say that now. ओके मैम, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप अभी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ में कैसे मैनेज कर रही हैं? Okay. Like I always say, it's not a level playing field. महिलाओं के लिए थोड़ा मुश्किल है. यस मैम। कुछ जिम्मेदारियां तो हमें समाज ने दे रखी हैं और कुछ हमने अपने आप अपने ऊपर डाली हुई हैं. जैसे sometimes we start asking too much from ourselves. We Yes. want to be a good soldier, a good mother, a good daughter, and everything. We want to cook on our own. But my point is that develop an ecosystem which helps you. You should have people around which help you, so that you can be a good mother and a good soldier as well. It is not that difficult, provided you don't push yourself so much, as in you have to be good this, good that, and everything.
इफ़ यू हैव अ हेल्प शी कैन कुक फॉर यू, यू आर पेइंग हर, उसका भी घर चल रहा है, आपका भी घर चल रहा है. सो आई थिंक इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि आप किसी से हेल्प ले रहे हो, या डेवलप्ड एन इकोसिस्टम. इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू शुड ऑलवेज हैव इट. एंड देन दैट इज़ हाउ आई मैनेज. आई ऑलवेज हैड अ हेल्प. वी वर पेइंग हर वेल, उसके बच्चे की पढ़ाई हम देख रहे थे. शी यूज्ड टू कम टू अस. सो मुझे लगता है कि इन अ वे वो मेरा घर चला रही थी एंड इन अ वे मैं उनका घर चला रही थी. सो म्यूचुअली टू फीमेल्स वर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड सिस्टम विच वी कैन ऑल प्लान फॉर. Yes, ma'am. Nice. Hats off, salute to you that how कितनी खूबसूरती से आप अपनी दोनों लाइफ को मैनेज कर रही हैं. Yes, ma'am. तो मैम जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होने लगा है, भेदभाव होने लगा लड़का और लड़की के बीच में. तो एज अ वुमेन इन यूनिफॉर्म क्या इंडियन आर्मी में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला? See, I am a very small part of the ecosystem. Luckily, मेरे साथ कभी कोई discrimination नहीं हुआ. I always had wonderful men with me who respected me for my rank, for what I did for them. I always got an ecosystem where we were like a family. They were a family to me, I was a family to them. And we fought alongside each other. Especially in Ops Sindoor, I saw the kind of patriotism, the kind of bhaichara as we say, which I had never seen before. So for not even a second, I could feel that I am a woman leading men. Your men now, they do not make you feel like that. They make you feel like, you know, you are a true leader and they're very happy to serve with you. Yes, ma'am. मैम जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप ही की तरह मैं भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ. तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की जो मेरी पहली पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी और वो टाइम मेरे लिए कैसा होगा जब मैं पहली बार गन को होल्ड करूँगी. तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी कि आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी और वो टाइम आपके लिए कैसा था जब आपने पहली बार गन को होल्ड किया था? ओके, तो गन को होल्ड करने के लिए पहली पोस्टिंग का वेट नहीं करते, वो आपकी ट्रेनिंग में हो जाता है. यस मैम. और अगर आप इंडियन आर्मी की बात करें तो द मोस्ट डिसिप्लिन प्लेस इज़ वेयर यू गो एंड फायर. फायरिंग रेंज पे आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बिकॉज आपको रियल गन दी जाती है, आपको रियल एमिनेशन दिया जाता है, जो अगर कहीं इधर उधर हो गया तो यू नो इट कैन डैमेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जब हम पहली बार अकेडमी गए थे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आई वोंट लाई, आई वॉन्टेड टू रन अवे. ऑन द first day I was like, I cannot do this. Second day I thought I might. Third day I was ready to jump from the first floor and run away, but then luckily one of my neighbor had said to my mother, लड़की है 2 दिन में वापस आ जाएगी. Somehow that motivated me in such a positive way that I told myself that I will remain here. I'll not let my mother down, because my mother in the first place she never wanted me to join, because like mostly parents think कि खतरा है, ये है वो है. So I think she was also of the same belief. But then when she let me in, I thought to myself that I will never let her down. तो 3rd day onwards, फिर 4th day धीरे धीरे हम used to हो गए. उसके बाद जब weapon training का time आया, and I held the weapon for the very first time, I realized कि it is not a joke. It's a 6 kg weapon and it has live ammunition which can kill people. Yes, ma'am. It is a very big responsibility. You have to be very strong mentally as well as physically to hold the weapon, aim at something, realizing that someday you have to use it in a life situation. ऐसा नहीं है कि हम training कर रहे हैं for nothing. You know that you have to train well because one day you might have to kill the enemy with this. So it's a difficult thing, but it gives you such a power. So the sense of empowerment that you get by holding a weapon and firing it is immense. You have to do it to believe it. So it was amazing. तो वो जब आपने पहली बार शूट किया था तो उसकी जो साउंड थी, तो हाउ वाज दैट? मतलब वो टाइम कैसा था? हाँ, बहुत डर लगता है. इट इज स्कैरी. अगर आप कर रहे हो, आपको पता है कि नाउ यू गोइंग टू पुल द ट्रिगर, तो आपको यू नो जैसे नीडल जाती है, आप देख रहे हो कि जा रही है, तो शायद आपको थोड़ा कम डर लगे. जब अगल बगल वाले फायर करते हैं तो वो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो यस, साउंड ऑफ फायर, जब जर्क आता है आपके कंधे पर, आप पीछे होते हो, आपको चोट लगती है, आपको डर लगता है. बट आर्मी दे ट्रेन यू लाइक दैट, यू नो. वो जो फियर है वो सबको होता है.
कुछ लोग ओवरकम कर लेते हैं, Yes. कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर पाते, पाते। तो आपको बस वो फियर ओवरकम करना है, एंड देन इट्स अ स्मूथ सेल। हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, और अभी हाल ही में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025, जिसमें जो हमारे 26 इनोसेंट सिविलियंस थे वो मारे गए थे। तो इस पे आपका क्या रिएक्शन था जब आपने अटैक के बारे में सुना? I was surprised. It's an unwritten rule that the civilians were never harmed actually there. So we all were surprised. It was a very heinous act, and I think उसके बाद जो भारत ने देखा, that was a befitting reply to it. Yes. मैम, अभी हाल ही में मिस्टर शुभम द्विवेदी, वन ऑफ द विक्टिम ऑफ पहलगाम अटैक, उनकी फैमिली के साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब वहाँ पे अटैक हो रहा था तो उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी, ना कोई आर्मी सोर्सेज अवेलेबल थे। जम्मू एंड कश्मीर एक जैसे सेंसिटिव या रेड अलर्ट एरिया है, तो वहाँ पे तो सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए थी, बट स्टिल इट वाजंट लाइक व्हाई इट इज सो। Okay, so since it is not my jurisdiction as such, firstly I'm not posted there, तो वो मेरा area of responsibility नहीं है. Still whatever I have read from the environment or tabloids, I believe that वो जो area था that comes under police. यस मैम। And वहाँ पर I'm not very sure about it, but I think उस समय टूरिस्ट को आने की अनुमति उस समय नहीं दी गई थी. There is a season, तो Yes, I ma'am. think शायद टूरिस्ट थोड़ा पहले चले गए होंगे, इसलिए वो व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी जो शायद वहाँ पर होनी चाहिए थी। पर आई थिंक ये जैसे ही इस हमले की खबर मिली उसके बाद जितने भी हमारे फोर्सेस थे, दे रीच देयर एज सून एज दे कुड, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो वो एरिया इज़ वेरी फार अवे। आपको पोनी राइड करना पड़ता है 6 किलोमीटर और समथिंग, देन यू गेट इनटू दैट एरिया। तो द रिस्पॉन्स आई थिंक जितना जल्दी हो सकता था उतना दिया गया था। मैम, नाउ कमिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर हम लोग जानते हैं कि जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके रिवेंज में स्टार्ट किया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप हमें हर छोटी से छोटी चीज़ बताएंगी? तो आर्मी के जो फंक्शन करने का तरीका है वो ऐसा है कि इट इज़ इन साइलोस, एज इन जिसका जो काम होता है वो वही करता है, एंड ऊपर एक लेवल पे जाके ऑपरेशन प्लानिंग होती है। Yes. तो हमें ये बताया जाता है कि हमारा क्या काम है। अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ मैं आपको सारी प्लानिंग बता सकूँ, एंड सिंस ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो इसको रिवील करना आई थिंक ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मैं आपको कुछ छोटी बातें बता देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि हमने बहुत ही बेफिटिंग रिप्लाई दिया। जितना उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया उससे ज़्यादा हमने दुश्मन को नुकसान पहुँचाया। एक तरीके से ये अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत दिन से आर्मी का जो सोल्जर होता है वो ट्रेनिंग करता है, वो सोचता है कि एक दिन वो मौका आएगा जब वो दुश्मन पे हमला कर सकेगा, जब वो बदला ले सकेगा, जब वो अपने देश के लिए कुछ कर सकेगा। Yes. ऑपरेशन सिंदूर गेव दैट अपॉर्चुनिटी टू आवर सोल्जर्स। Yes, ma'am. खतरा बहुत था, काफ़ी सारे देयर वर थिंग्स व्हिच आर कमिंग ऑन अस व्हिच आर बीइंग इंटरसेप्टेड बाय आवर मिसाइल्स। तो लेकिन स्टिल जितना मैंने अपने जवानों को देखा, एक भी जवान के माथे पर कोई शिकन नहीं थी, किसी के घर से कोई पैनिक कॉल नहीं आ रहा था। सब बस ये सोच रहे थे कि अगर दुश्मन हमारे सामने आ जाए तो हम उसे कैसे मारें। They were not at all afraid of anything. Everybody was looking forward to the opportunity. Even जब सीज फायर ख़त्म हुआ तभी हम यही चाहते थे कि हम पाकिस्तान को और करारा जवाब दे पाते तो अच्छा। मैम, जैसे कि पहलगाम की जब अटैक हुआ था तो वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक करने के बाद एयर की तरफ शूट करके वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जब आप ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट कर रही थी तो ये बात आपके माइंड में आई थी? जनरली जो टेररिज्म होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से होता है। पाकिस्तान का जितना हमने हिस्ट्री में देखा है, पढ़ा है, सुना है, उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वॉल्व रहती है। इस समय एक्चुअली क्या हुआ था, वॉज द गवर्नमेंट इन्वॉल्व, इट वॉज नॉट इन्वॉल्व, वो मेरे लेवल की बात नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस बेहतर जानते हैं। बट यस, लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़गी थी कि फ़ौज से लड़ाई होती है, टेररिस्ट की फ़ौज से लड़ाई होती है या सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई होती है।
टेररिस्ट की कभी लड़ाई निहत्थे सिविलियन से नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था, बहुत निंदनीय था। इट शुड नेवर हैव हैपेंड। एंड यस, वी वर एनरेज्ड विद एंगर कि हमारे सिविलियंस के साथ उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। तो जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो रहा था, वी ऑल वांटेड कि किसी ना किसी तरह हम इस चीज़ का रिवेंज लें। एंड फाइनली सबने मिलकर वो कर दिखाया। आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बीच में रोक दिया गया था। तो क्या ऐसा सच में है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी वर्क में है, जो हमारी आर्मी सोल्जर्स है वो उस पर काम कर रहे हैं? ओके, ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं गया है। As in, we are always working. Even before Op Sindoor, we were working on the targets. We are working. Army never stops. We always keep making plans. जब हम पीस में होते हैं तो हम प्लान्स बनाते रहते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं कि अगर हमारे साथ ये हुआ, अगर पाकिस्तान ने अटैक किया, अगर किसी और पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर अटैक किया, या फॉर दैट मैटर किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हम प्लान्स बनाते रहते हैं, हम ट्रेनिंग करते रहते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है आर्मी में जिसे कहते हैं कि जितना आप स्वेट करते हैं ट्रेनिंग में, उतना कम आप वॉर में ब्रीथ करते हैं। तो ये हमेशा चलता रहता है। और सीज फायर के रीजंस प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी बार बताए हैं। सीज फायर इसलिए किया गया क्योंकि आई थिंक उनकी तरफ से आया था कि अभी सीज फायर करना चाहिए। एंड अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक सोल्जर के अलावा कोई ये नहीं चाहता, कोई आई थिंक उससे ज़्यादा कोई ये प्रे नहीं करता कि कभी वॉर ना हो। जबकि हमारी पूरी ज़िंदगी हम उस वॉर की तैयारी करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम हमेशा प्रे करते हैं कि काश ये वॉर ना हो, क्योंकि वॉर से कभी किसी का भला नहीं होता। वी हैव लॉस्ट पीपल, दे हैव लॉस्ट पीपल, फाइनली इट्स द लॉस ऑफ ह्यूमंस। सो गिवन इट टू मी, आई वुड नेवर वांट दैट। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम कभी चुप नहीं करेंगे। मैम, मॉक ड्रिल जैसे इनिशिएटिव को क्या रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवाना चाहिए? हाँ, अगर हम इतिहास देखें तो इसराइल जैसी कंट्रीज इनको करती हैं और हमें भी करना चाहिए। आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसी चल रही है, उसमें आई थिंक ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपने आप को सेफ रखने के लिए मॉक ड्रिल्स का करते हैं। मैम, मॉक ड्रिल के द्वारा हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो आम भारतीय नागरिक हैं, हम उन तक क्या मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सेफ रहिए। हम आपको हर जगह प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हम बॉर्डर से किसी को अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन अगर कोई एयर स्पेस से अंदर आ जाता है तो समटाइम्स इट हैपन्स दैट समटाइम्स द एयर डिफेंस इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। कहीं कोई भूल चूक हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा कोई खतरा अगर आ भी जाए तो आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यस मैम, आपकी जर्नी, आपकी स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैम, मेरी तरह ऐसी कई सारी लड़कियां आप ही की तरह इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखती हैं, तो आप उन सबको कैसे इंस्पायर और मोटिवेट करना चाहेंगी? To answer your question, Akshara, how would I like to motivate? See, everyone has to die one day. Yes. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से we all are mortals, कहीं ना कहीं तो हमें जाना ही है दुनिया छोड़ के। What better way than to be covered in a tricolor? You know, the entire nation mourns your loss. वो विदाई एक विदाई है, और उस विदाई के लिए आप कुछ भी कर लो, आपको वो विदाई तभी मिल सकती है जब आप किसी सिक्योरिटी फोर्स में हो या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हो। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग। इंडियन आर्मी में आना बहुत आसान बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इट गिव्स अ गुड सैलरी, इट गिव्स लॉट ऑफ प्रिविलेजेस टू यू, एनीबडी कैन वॉक अप एंड बिकम एन आर्मी ऑफिसर। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट डिमांड्स लॉट ऑफ स्वेट, इट डिमांड्स ब्लड, it demands lot of sacrifices, but at the end of it, when you become an officer, you know, your walk changes, the way you talk changes, everybody look up to you, you inspire 100 people, and even if you are able to inspire one person in your entire life, that achieves the aim of your life. So I'm truly happy and I would say privileged to be a part of this, and मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कहते हुए, but I think every girl in India should aim for this. आप कर पाए ना कर पाए, that's a different story, but you should aim to protect your nation, your motherland, and what better way than this? Yes. Ma'am, before we end, something you want to say about our youth, about the youth listening, and something about our school? Okay, so firstly I would tell you how one can enter the army, because it's a very common question.
पहले आर्मी में लेडीज़ की एंट्री सिर्फ OTA चेन्नई में होती थी, जिसमें आपको UPSC का एग्ज़ाम देना होता था, जो इंटरनेट पे आपको ढूंढने पर मिल जाएगा। आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। वंस यू आर एबल टू क्रैक दी रिटन पार्ट, देन यू आर कॉल्ड फॉर SSB इंटरव्यू विच गोज़ फॉर 5 to 7 days। उसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं। देयर आफ्टर एक मेरिट लिस्ट बनती है। इफ़ यू फिगर इन दैट मेरिट, देन यू गेट इनटू द आर्मी। बट नाउ पिछले 2 सालों से हमारे पास NDA की ओपनिंग भी आ गई है। सो नाउ गर्ल्स कैन गो टू NDA, कैन जॉइन NDA आफ्टर 12th। They have to write an exam, face the interview and get into NDA. So I have seen the girls in NDA because I was posted in Pune some time back. They are phenomenal. You will not be able to tell whether they're boys or girls because they're so physically fit. Yes, looks wise, of course we got tan, we get short hair. Yes, but the physique, if you'll say, you'll not be able to make out the difference between, physically, the difference between men or women. They are equally capably protecting the nation. So these are the entry schemes which are there. Other than that, there is non-technical and technical entry scheme. After engineering, you can get into the technical stream. For that, you don't have to write an exam. You just have to go for SSB. For non-technical, you have to write an exam and then get into SSB. So the message that I want to give the youth, firstly, stop scrolling. Don't watch Instagram reels. They are nonsense. They don't give any education. What you should aim at is, आप जो भी कर रहे हैं, be in the moment. If you're in the class, if you're studying, be in that moment. If you're eating your food, be in that moment. Look at what you're eating, what nutrition you are getting. If you're playing, play with your full energy and full presence in that moment. जब आप ये सब कर लेंगे, तब आप एक बहुत ही सुदृढ़, एक बहुत ही I would say empowered person बनकर उभरेंगे। उसके बाद आप जिस भी चीज़ में अपना हाथ लगाएंगे, अपना पूरा दिल लगाएंगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। सो लाइक आई सेड, ड्रीम बिग एंड देन चेज योर ड्रीम्स। आप जो भी करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बन के नेशन की हेल्प करना चाहते हैं, आप इंजीनियर बन के हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, आप पैसे से किसी की मदद करना चाहते हैं, वो आप सब कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ यू हेल्प द नेशन। व्हेन यू स्टैंड विद अ पर्सन हु कैन नॉट स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, यू हेल्प द नेशन। When you're being honest in your work, you're helping the nation. When you're being kind to people, you're helping the nation. So you can help the nation in any which way you want, provided you have that capability which comes when you live in the moment. Sure. Something about our school? What you like the most? Yes. So, firstly, today's program was phenomenal. I was truly surprised. I was not expecting this kind of program. The program, especially about Op Sindhu that you guys did, I teared up. You know, I being in Forge and I've seen so many things, but I teared up. So it was really touching. Hats off to the school staff. The children are being taken care of in such a good manner. They are being taught all the aspects of life, not only the studies. So my daughter has a lot of improvement, and this is her 4th school. Unfortunately, because of our frequent postings, she had been moving a lot. And I never felt that she is at home in any of the schools but this. So when she comes here, she is happy coming here. When she goes back, she is very happy and excited, and she tells us about her day. And her brother and sister, that's my nephew and niece, are also in the same school. So it is kind of a blessing. So for this, I would like to thank Mr. Saurabh Dwivedi and Miss Neelam Dwivedi. They had been phenomenal. They had taken a very good care of my child and all the other children in the school. So thank you so much. I would like that my daughter continues in the same school. Thank you. तो चलिए इस पॉडकास्ट को और खूबसूरत और एक्साइटिंग बनाते हैं। मैम, वी हैव वन सरप्राइज फॉर यू। आर यू रेडी? Yes. So here is the surprise. Mama, you are here. Hi Arshi. Hello. So I want to ask one question to you. May I? Yes. Okay. What makes your school different from others? It is very big. It has many classrooms and even one swimming pool, and the teachers of here are very nice. Wow, that means you like the teachers. Yes. That's so better. Ma'am, do you like the surprise? Oh, of course. This is the best surprise I've got so far. Thank you so much for bringing her here. Most welcome. Okay, ma'am. So I would like to ask that have you seen the changement is Arshi, because she is studying in our school, Gardenia Public School. So what are your feedbacks?
she's very happy these days. I mean, especially when she goes for the swimming class, she comes back very happy, and she's always excited about the dance and the music. She used to call it music class, and she's happier. She's more confident. She speaks very well. And I think there are small workshops that the school organizes. Like in one of them, she was a shopkeeper, right? Yeah, so she enjoyed that a lot. Oh. And then there are some videos of Rakhi in which she featured, so she was very excited for that. And of course, education is a big part, and she is learning a lot. Initially, she was studying in a school in which she did not. Any public school. Yeah. So the study was not this much, but now I'm very happy that she's learning a lot alongside with her brother and sister. My nephew and niece are also in the same school. That's so better. I hope कि जो कोई भी ये पॉडकास्ट देखेगा बहुत ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर होगा. हमारे लिए एक बातचीत ही नहीं था. It was a lesson in courage, duty and unmatched patriotism. लेफ्टिनेंट कर्नल आतिम मिश्रा जी ने हमें ये दिखा दिया कि हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी दीवार बड़ी नहीं होती. और एक नारी जब वर्दी पहनती है तो वो सिर्फ देश की सरहदें नहीं संभालती, वो देश की बेटियों का आत्मविश्वास भी संभालती है. जहाँ जहाँ आपकी कहानी पहुँचेगी वहाँ वहाँ बेटियों के सपनों को पंख मिलेंगे. Until the next time, stay inspired, stay brave. जय हिंद.